Yes, chalo jaldi. Dear all, let us continue to our session. Here is Professor Rameshwar Gagradi from Gagradi IIT JEE. This is our online portal. This is live streaming. We have been learning the atomic structure, few part of periodic classification of elements. Now we are learning the electronic configurations of various elements. We are now learning electronic configuration of vanadium. I explained to you how vanadium electronic configuration is there, why the electrons are entered into the porous shell and then they turn to the 3D shell. Why? Because due to the energy of porous is less than 3D. This is in accordance with the above principle n plus n. N plus n rule. This is principal quantum number. This is azimuthal quantum number. आपको ये याद है. And according to this summation, lower the summation, the energy of that orbitals will be lower. If both the values are supposed to be appear equal, अगर दोनों की summation same हो जाती है, then in that case lower the value of n, principal quantum number जो कम होगा, the electron will enter into that first. So इसका ध्यान रखें. This is what the what will you call it as a n plus n rule. ठीक है. क्रोमियम के तरफ चलते हैं. आप ठीक से देखो. This is not the right electronic configuration. ये right नहीं है. This is wrong. This electronic configuration is wrong. कौन सा electronic configuration सही है? तो फिर मैं अभी ब्लॉक डायग्राम से निकलता हूँ, फिर आपको ध्यान आएगा. Let me write the block diagram. क्रोमियम का ब्लॉक डायग्राम निकालते हैं. 1s2 2s2 थोड़ा छोटा निकालना पड़ेगा तो एक्सेप्शन देना. ये निकालते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 रेडी आएगा. मतलब रेडी तो बाद में आएगा लेकिन नहीं पता नहीं. एक दो तीन चार पाँच and this is 4s2. अब here all थोड़ा ये ध्यान दो. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से. अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पुट अप कर रहा हूँ. 1s2 यहाँ पर मैंने लिख दिए 2 इलेक्ट्रॉन. 2s2 ध्यान दो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया. 2p6 पहला ये इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा पहले 3 अकॉर्डिंग टू द Hund's rule of multiplicity. Now as there are 3 electrons still remain, they will paired like this. ये पेयर हो गए. 3s2 3p6 once again Hund's rule of multiplicity. इस तरह से मैं क्लीन अप करूंगा. अब 3d4 है तो मैं 3d4 में अकॉर्डिंग टू द Hund's rule of maximum multiplicity they will go like this. ये 3d4 हो गए और ये 4s2 है. Now see it carefully. आप सभी देख रहे हैं, आपको पूरी सभी को याद भी आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं. आपका अगर स्क्रीन ब्लर हो रही है नहीं, अब ठीक है ना. ओके थोड़ा सा और आगे लिखते हैं. देखिए आप यहाँ पर आप ध्यान दीजिए. राइट फ्रॉम दिस वन 1s2 ये लिखा है मैंने. 2s2 मैं यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ. This is 1s2, this is 2s2, this is 2p6, this is 3s2, this is 3p6, this is 3d4 and this is 4s2. ठीक है. Now you observe all these things. According to the concept of the extra stability and the exchange electron theory,
according to the concept of extra stability and exchange electron theory, the half-filled orbitals are more stable than any other orbitals, as well as the completely filled orbitals are more stable than any other orbitals. And when there is a greater stability, obviously that is a lower energy state, means the electrons and the atom in sense of electrons, it acquires the extra stability, it turns towards the stability, and in doing so its energy obviously reduces. जब एटम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाता है तो अपने आप उसकी एनर्जी कम हो जाती है, because when it is turning towards the stability it has to work out, and when it has to work out, obviously for work the energy needs and hence the energy is utilized and therefore energy reduces. ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ रहा है? जब किसी को अगर स्टेबल होना है तो उसको काम करना पड़ेगा, जब वो काम करेगा तो एनर्जी का उपयोग करेगा, और जब वो एनर्जी का उपयोग करेगा और टुवर्ड्स स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो अपने आप उसकी एनर्जी कम होगी। बिल्कुल सही है ना? राइट है कि नहीं? आपको समझ रहे? अगर मान लो मनी इज द करेंसी, करेंसी इज द एनर्जी, so I have in my pocket, I have 200 rupees in my pocket, I am now hunger, I have to take lunch, so 200 rupees is the energy in the form of currency, currency is in the form of energy in the form of currency. 200 rupees मेरे पास है, मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, मैं किसी होटल में गया और वहां पर मैंने अपना लंच कर लिया, मुझे वहां पर 150 रुपीज पे करने पड़े। सो व्हाट हैपेंस? नाउ आई एक्वायर स्टेबिलिटी, क्योंकि लंच करा तो मैं स्टेबल हो गया, मेरा जो अनस्टेबिलिटी थी हंगर की वजह से मैंने स्टेबिलिटी मिला ली, और क्या हुआ? करेंसी देनी पड़ी ना, 150 रुपीज मुझे वहां पर देने पड़े, तो एनर्जी कम हुई ना, बिकॉज करेंसी इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं बता रहा हूं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, सो आई हैव टू स्पेंड 150 रुपीज देयर टू एक्वायर द स्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ माय हंगरनेस। आपको समझ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? सेम केस इज हियर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर ना? ठीक है, चलो आप चैट बंद करो, मैं देख रहा हूँ कि नहीं तो फिर मैं यहाँ से चैटिंग का आपका ऑप्शन बंद कर देता हूँ, मैं चैटिंग का ऑप्शन यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, फिर आप अगर नहीं सुनोगे। अब आप बिल्कुल चैटिंग नहीं करोगे, अगर मुझे नोटिस हो तो मैं आपको यहाँ से फिर रिमूव करूंगा। देखो ध्यान दो, व्हाट आई एम डूइंग हियर, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस तरह से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी एज यूजुअल, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते आ रहे हैं। 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो फुलफिल हो जाएगी, then the electron will turn to the remaining 4 electrons will turn to the 3D subshell and it will be like this। देखो समझ रहे हैं? अब यहाँ पर किसी को डाउट है क्या? पूछो, आपके स्पीकर ऑन है, आप मुझे पूछ सकते हो, किसी को डाउट है क्या? मैं अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को चेंज करूंगा, I shall change this electronic configuration because this is not a correct electronic configuration। Yes, anybody? किसी को कुछ डाउट्स है? नो सर। ओके ठीक है, मैं चाहता हूं सभी को समझाए, मतलब ठीक है। सो कम टू द पॉइंट, मैं यहाँ पर अभी आपको बता रहा हूँ किस तरह से वो देखते हैं क्या हो रहा है। नाउ लुक एट दिस 3d4 and 4s2। अगर मैं यहाँ पर एक s ऑर्बिटल लिखता हूँ, दिस इज s ऑर्बिटल एंड दिस इज p ऑर्बिटल, या d ऑर्बिटल ले लो, d ले लेते, आपको समझने के लिए d ले लेते, d ऑर्बिटल। अगर मैं s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। सर नीचे का स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके ओके, नीचे का स्क्रीन में दिख रहा है, देखो आपको। Look at these two situations when they are arise in the same atom। इसी एटम के शेल्स में इस तरह से सिचुएशन आ जाती है, तो दिस इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिकॉज दिस इज कंप्लीटली फिल्ड एंड दिस इज नाइदर हाफ फिल्ड नॉर कंप्लीटली फिल्ड। नोटिस योरसेल्फ, सभी ने ध्यान दो, यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान देना, पूरी ताकत के साथ कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D4 का है। D4 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, D1 D2 D3, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये नाइदर हाफ फिल्ड नॉर कंप्लीटली फिल्ड, राइट? ये ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है, सो इट इज स्टेबल वन। एज कंपेयर टू दिस वन, इट हैज अ
it has a more stability and hence it has a lower energy. But when you see it has comparatively this is not a stable electronic configuration. Reason is that one place is vacant. If you fill this, then this can be the stable electronic configuration. अब s orbital में और एक मैं पिक्चर निकालता हूं. This is still s orbital. देखो ये भी s orbital है. This is also stable because it is half filled. This is also stable because this is completely filled. So if you remove one electron and that will become half filled, still it is stable. So this electron will promote to this vacant p orbital. यह electron यहाँ चले जाएगा. What will happen? This electron is now promoted to this one. यहाँ चलेगा, ये यहाँ से निकल गया. Is it? Now this is half filled, so this is also stable. This is a complete symmetrical picture, that is half filled, completely half filled. देखो, single symmetry manage हो गई. और chances of कितने हो गए? There are 4 chances of exchange of electron. This is 1, this is 2nd, this is 3rd position, this is 4th. So 4 chances of exchange of electron. 4 times exchange of electron यहाँ पर possible हो गया. क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है 4 जगह पर. ये दूसरी, ये तीसरी. So this is very stable electron configuration. Look at this. Same case is happening here. This 4s electron is now promoting here. ये जो 4s2 है, अगर मैं यहाँ पर promote कर दूं, तो ये electronic configuration मिल जाएगा. And the chromium atom maintains this stability. Chromium atom इस तरह से stability maintain कर लेता है. अगर chromium का electronic configuration आपको समझ गया, तो आप obviously बाकी भी समझ जाएंगे. Chromium now it is what? It is shifting its electron from 4s orbital to the 3d vacant 3d orbital to acquire greater stability, and hence the energy lowers down. And when energy lowers down, obviously the stability achieves. जब stability मिल जाती है तो अपने आप energy कम हो जाती है. Now this electron is promoting here. देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने जंप कर दिया. क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जमेगा? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगा? ये मैं लिख रहा हूं. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूं. This electron will promote here. It will be like this. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया. So this will become now simple. ये as it is हो गया. इसको सिंगल कर दिया मैंने. Now look at this. This electron when promotes here from this one. This is a symmetrical picture. Half filled orbital. This is still half filled. दोनों half filled है और दोनों stable है. Having extra stability. Extra stable. Both this one is also and this one is also. दोनों extra stable हो. And therefore chromium having the electronic configuration this one is. Now what will happen? You will have to change the upper side. Upper side बदलनी पड़ेगी. 4s1 हो जाएगा. This will become now 4s1. And this 3d4 will become 3d5. Therefore the electronic configuration of chromium will be like this. Chromium 24 argon 3d5. Sorry. Argon. Here you will write 3d5 4s1. 3d5 4s1. यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप क्रोमियम का देखते हैं. आप कहीं भी देखोगे तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको क्रोमियम का मिलेगा. देखिए आप, क्या डाउट है? टू एक्वायर ग्रेटर स्टेबिलिटी, एज इट हैज द चांस टू एक्वायर द ग्रेटर स्टेबिलिटी. उसको चांस मिला है ना, उसको चांस मिला है. नहीं रहता तो बात हो रही, बाकी जगह पर नहीं है. बाकी जगह पर नहीं था, यहाँ पर उसको चांस मिल चुका है. हाँ यस सर, बट स्टेबिलिटी के लिए वो तो अगेंस्ट चले गया ना रूल के, n+l रूल के. हाँ तो n+l रूल के अगेंस्ट गया ना, राइट है. तो फिर हमारी ये चर्चा हुई है. बिल्कुल सही तुम्हारा कहना. यहाँ पर हमारी ये चर्चा हुई ना कि इन केमिस्ट्री any atom or in the universe anybody it always try to acquire stability anyhow. वो कोशिश करता है कि मुझे स्टेबिलिटी मिले. क्यों? क्योंकि जब स्टेबिलिटी मिलती है तभी संतुष्टि होती है. भाई अगर मैं मान लो भूखा हूं तो मुझे स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब मैं वो मेरा हंगरनेस पूरा करूंगा तभी स्टेबिलिटी मिलेगी. स्टेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि स्टेबल होगा तो ही वो हमें कहीं मिलेगा. आइसोलेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. सेम केस है हमारे बारे में, जैसा है वैसे ही उनके बारे में. तो स्टेबिलिटी के लिए वो n+l रूल को चैलेंज कर देता है. इसीलिए क्रोमियम एंड कॉपर का दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्सेप्शन है. और ऐसे बाकी जगह पर भी है. बाकी जगह पर भी एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो n+l रूल अबव प्रिंसिपल को
जैसे इंडल्ज करके चलते हैं, लेकिन उसके रीजन दिए ना फिर व्हाई दिस इज देयर। इसका रीजन ये है कि इट एक्वायर्स ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो एट द एंड क्या हो गया, N+L रूल विन हुआ कि स्टेबिलिटी विन हुई हर्षिता? स्टेबिलिटी। वेरी क्लियर। और राइट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ कोचिंग मैंने यही आपको सभी को बताया, इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू अकम्प्लिश द स्टेबिलिटी। हर कोशिश, हर व्यक्ति, भले वो निर्जीव हो, सजीव हो, एनिमल किंगडम से हो, प्लांट किंगडम से हो, वो कोशिश करता है स्टेबिलिटी मिलाने की, राइट है ना। वो स्थिर होने की कोशिश करता है, और जब वो स्थिर होना चाहता है तो उसे अपने एनर्जी एक्सपेंस करनी पड़ती है, उसे कहीं ना कहीं वर्कआउट करना पड़ता है। तो इन्होंने वर्कआउट किया, जंपिंग कर दिया, जंपिंग करते से क्या होगा, यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मैनेज कर दिया गया है। देखो क्या डाउट है। फिर मैं कॉपर की तरफ चलूंगा, इसको नहीं समझा, यहाँ पर ठीक से देखो, सभी स्टूडेंट ने देखना है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बुक में या कहीं भी देखोगे या कहीं पढ़ाया जाएगा तो इसी तरह से लिखा जाएगा, आर्गॉन 3d5 4s1, ना कि 3d4 4s2। इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, ध्यान में रखिए। हाँ, ये बात जरूर है कि 4s पहले अपीयर होगा, 3d बाद में, लेकिन तू पिक्चराइज इट, दैट्स व्हाई आई रोट लाइक दिस। हाँ, इसमें गलत नहीं होगा, या क्या होगा 2 8 12 2 हो जाएगा इसका, देखो लगा, इसमें क्या चेंज होगा, इसमें चेंज होगा। आर्गॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये सेकंड शेल है, इसमें आपके चले गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल, दिस इज 6 + 2 8 + 5 13 हो गए, दिस विल बी 13, और कितने हुए, ये 1। तो ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 13 1, 2 8 13 1, बिकॉज 6 + 2 कितना 13 आ रहा है, कितना 6 + 2 8 + 5 13, yes 2 8 13 1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। जब क्रोमियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2 8 13 1 इस तरह से रहेगा। अब ये आपको अगर समझा है तो मैं इसको वाइप ऑफ करता हूं और मैं चलता हूं कॉपर की तरफ। नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हैं। यस, क्या लिखा है सर, क्या फायदा N+L रूल का, इलेक्ट्रॉन को जाना ही नहीं तो जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। हाँ ठीक है भाई, कभी कभी फायदे तोटे की बात नहीं होती, कभी कभी नुकसान सही के भी फायदा होता है, इसका ध्यान रहे। कभी कभी लॉस करने के बाद भी हमें बेनिफिट मिलता है, इसका ध्यान रहे। सो नॉट एवरी टाइम दी लॉजिक इज लाइक दैट। गुड सर, कॉपर के लिए क्यूप्रम भी बोलते हैं। यस, कॉपर को क्यूप्रम ही कहा जाता है, लेकिन अब हम लोग उसे कॉपर कहना शुरू कर दिए। क्यूप्रम ये उसका लैटिन नेम। अब मैं यहाँ पर कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, आप ये समझ लें। लेट मी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। इसीलिए केमिस्ट्री में हर चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरत है। लेट मी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। यहाँ पर मैं कॉपर का लिख देता हूँ। कॉपर, ध्यान दो, कॉपर लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 29, 1s2 2s2 2p6, ध्यान दो, बिल्कुल बोले नहीं, S2 3p6 3d 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पर 4s2 आता है, ध्यान रहे, लेकिन मैं समझने के लिए 3d एंट्री कर रहा हूँ, 3d, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आखिरी में 4s। अब मैंने 3d के इलेक्ट्रॉन एंट्री करने, यूजुअल अगर मैं चलूंगा तो यूजुअल इलेक्ट्रॉन एंट्री हो जाएगी इस तरह से, ध्यान दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ऑर्गन होगा इतना, ऑर्गन टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 4s2 ये पूरा होगा और बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, कितने हो गए, 18 + 2 20, and 9 electrons will enter into the T subshell. देखो, this should be the electronic configuration of copper, but in actual practice this is wrong. This is by rule, the electronic configuration should be like this, according to the Hund's rule of maximum multiplicity. इलेक्ट्रॉनिक इसी तरह से होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और हाफ फील्ड कंसेप्ट मैंने सामने रखा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर मैं प्रमोट कर देता हूँ, राइट, देहुल, अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं अगर यहाँ पर प्रमोट करता हूँ तो 3d10 हो जाएगा, तो कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा, so it will acquire the more stability, and 4s जो है वो हाफ फील्ड हो जाएगा, so obviously both will acquire the extra stability and they will be stable.
and hence it has the lower energy state. Let me draw the its electronic configuration in terms of the orbital. Orbital में मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान दे, आपको यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है. ये मैं लिख रहा हूँ 1s1, सॉरी 1s, ये 2s, ये मैं 2p लिख देता हूँ. ये एक दो, ध्यान दो आप, बिल्कुल बोर्ड की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए. अगर आप गड़बड़ करोगे तो आपको नहीं समझेगा. ये 3D हो गया, 3D. अब ये मैं 3D निकाल रहा हूँ यहाँ पर. ये एक, ये दो, ये तीन, सॉरी 3, 4 और ये 5. ये 3D 5 ऑर्बिटल्स हो गए यहाँ पर, और ये 4s. अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे इलेक्ट्रॉन पुटअप करो. 1s2, 2s2, 2p6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन है, या एक इलेक्ट्रॉन है. Remaining electron will paired then according to the Moore's rule of maximum multiplicity, unless all the degenerate orbitals should occupy by single electron. 3s2, 3p6, again Moore's rule of maximum multiplicity. ज्यादातर स्टूडेंट को ये मेरा राइटिंग समझ रहा है. अब 3D में 9 इलेक्ट्रॉन है, मैं पहले पूरे कर दूं. ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये फोर्थ हो गया. 1 2 3 4 5. Now 4 electrons are remain. Let me pair them in the same degenerate orbitals. हो गई है 8 plus 1 9 इलेक्ट्रॉन हो गए. This is as it is 4s2. इस तरह से क्रोमियम का कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप देख रहे हैं तो इस तरह से आना चाहिए. देखिए, but in actual practice this is wrong electronic configuration. Why? Because it acquires the greater stability by promoting this 4s electron to the vacant 3D orbital. एक्चुअल प्रैक्टिस में ये जो 4s इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं वो इसे यहाँ वैकेंट d ऑर्बिटल में चले जाऊं तो इसका भी लॉस नहीं, इसका भी लॉस नहीं. दे विल एक्वायर मोर स्टेबिलिटी. हाँ, अगर मैं 4s के इलेक्ट्रॉन इधर प्रमोट करके अगर 4s का लॉस होता है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो क्या होगा? देन द एटम विल नॉट स्टेबल एंड हेंस, मतलब किसी को खुश करके, किसी को नाराज करके किसी को खुश कर नहीं सकते, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे ह्यूमन बीइंग में चलता है. तो किसी को नाराज कर दो, किसी को खुश करने के लिए किसी को नाराज कर दो. यहां पर ऐसा नहीं है. अगर 4s का इलेक्ट्रॉन अगर कॉपर अगर इधर प्रमोट करना चाहता है तो 4s शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. 4s कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहे क्या और 1 इलेक्ट्रॉन रह क्या. s ऑर्बिटल whether it occupies single electron or double electron, it is in both the condition it is stable. आप समझ रहे हैं डियर ऑल? s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहा तो भी वो स्टेबल है क्योंकि हाफ फील्ड है. s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो भी वो स्टेबल है क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है. तो अगर s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर ले लेता हूं और ये कंप्लीटली फील्ड हो जाता है, तो ना इसका लॉस है ना इसका लॉस है, इसका लॉस नहीं और इसका प्रॉफिट होगा. सो नो लॉस एंड प्रॉफिट इज देयर. And if no loss and profit is there, it is called as win-win situation. It is a business strategy. No loss and profit is there, it is called as win-win situation and it is a business strategy. Same thing is applied here. Let us promote this electron. मैं ये इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर रहा हूँ. Promote this electron here. और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब मैं चेंज कर रहा हूँ. Let me change the electronic configuration. यहां से मैं ये इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मैं और यहां पर लिख दूंगा. This electron now enters here. देखिए आप ठीक से समझ लीजिए. ये इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ कर दिया, ये अभी कंप्लीटली फील्ड हो गया. So this is having extra stability. ये हाफ फील्ड है, फुल फील्ड हो क्या हाफ फील्ड हो, एक्स्ट्रा स्टेबल होना ही वाला है. So what will happen now? Extra stability acquires. Extra stability acquires. अब ये ऊपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बदल जाएंगे. What will happen? Now this will become instead of 9 3D10 and 4s. yes, this will become 3D10. अब मैं इसको लिख देता हूँ 3D10 और ये हो जाएगा 4s1. देखिए, now this is the electronic configuration of copper. देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉपर का है. इसका कंपैरिजन इससे करें आपको समझ जाएगा. यहाँ पर हाफ फील्ड है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है. यहाँ पर कंप्लीटली फील्ड है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है. ये ऑलरेडी हाफ फील्ड हो चुका है. आफ्टर प्रमोटिंग तो स्टेबल होने वाला है. ये अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन भी रहते तो वो स्टेबल रहता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की उसकी कैपेसिटी दैट इज व्हाट कंप्लीटली फील्ड. और 1 इलेक्ट्रॉन वहां से चला भी गया तो हाफ फील्ड है तो वो भी स्टेबल. तो वैकेंट ऑर्बिटल अगर उपलब्ध है, इफ देयर आर द वैकेंट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू जंप लाइक दिस.
हैव यू एनी डाउट हियर? आप पूछ सकते हो, कुछ आपको डाउट है क्या? No, sir, no doubt. कोई स्टूडेंट्स को डाउट है मुझे पूछिए। देखिए मैंने No, कॉपर, sir. No, sir. No, sir. हाँ ओके ओके, मैं ये बता रहा हूँ, इसके मीनिंग ये भी होती है कि बहुत जल्दी जाना है सर हमें, तो मैंने किसी को यहाँ पर रुकाया भी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको किसी को नहीं समझा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप ठीक से देखो। कॉपर का और क्रोमियम का दोनों का देखो क्यों इस तरह से। अब मैं कॉपर इन टर्म्स ऑफ ऑर्गन लिखता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से कॉपर लिख देता हूँ। कॉपर एटॉमिक नंबर 29। अब इसका मैं लिखता हूँ ऑर्गन, और लिखूंगा 3d10 4s1, 3d10 4s1। So now today's session is up to this. Let us have some question Sir? answers. हाँ बोलिए। Yes. सर जिंक तो पूरा स्टेबल है। हाँ जिंक स्टेबल है क्योंकि उसमें ये पूरा होगा और वो भी पूरा हो जाएगा, 10 हो जाएगी यहाँ पर, और वो है। फिर जिंक के बाद नो डाउट। यस, फिर जिंक के बाद शुरू हो जाएगा 4p ऑर्बिटल का एंट्री। क्यों? क्योंकि 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p का एंट्री होता है। We have 5 minutes to discuss and to clear your doubts. हम लोग आपके डाउट्स, कॉपर का आपको समझाया मैंने, क्रोमियम का समझाया। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्यू टू एक्वायर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड हेंस दैट इज द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट फॉर एनी एटम व्हेन इट एक्वायर्स द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसके अलावा हमने टिटेनियम, स्कैंडियम, वैनेडियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन समझने की कोशिश की और मैंने बिल्कुल सही तरीके से आपको समझाया। आपको कितना परसेंट समझा? 100%। ओके, हाउ यू फील माय कोचिंग? मेरे कोचिंग का स्टाइल क्या है, किस तरह से? रिप्लाई। यस, आई एम आस्किंग टू एनीबॉडी, हाउ यू फील द कोचिंग ऑफ प्रोफेसर रामेश्वर सोमेश्वर गगरानी? दोनों की जो कोचिंग है वो आपको कैसी लग रही है, ये मैं पूछ रहा हूं। यस निशान, नहीं आपको हमने ये तो आपने चैटिंग में किया, आपको जवाब देना है भाई। ऑन स्पीकर एनीबॉडी क्विक। वो पूरा आवाज नहीं आ रही बेटा। हर्षदा? सर गगरानी क्लास हैज क्वालिटी। गुड, चलो आपके ओपिनियन क्विक शेयर कर दो बेटा। यहाँ पर मैं चैटिंग में तो मैं देख रहा हूँ, चैटिंग में आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आप अगर ओके कड़क, वेरी नाइस सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू, फैबुलस एंड वेरी इंटरेस्टिंग। कहीं और जाने की जरूरत नहीं ही नहीं। एक्सीलेंट कोचिंग, ठीक है, आपकी चैटिंग बहुत अच्छा है सर बॉडी लैंग्वेज से ही सब समझ जाता है। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। लेकिन बेटा मैं सभी से एक एक्सपेक्ट यह करूंगा आप सभी से कि कहीं अगर ऐसा लगता है कि आवर कोचिंग इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज और द कंसेप्ट आर नॉट इन डिटेल एक्सप्लेन, जो भी है, तो आप हमसे शेयर करोगे तो इट विल बी बेटर टू इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ कोचिंग एज वेल एज टू प्रिपेयर यू बेस्ट।